Today we are going to study the very most important chapter of our syllabus, that is alkane. Huh? So first of all we need to understand the introduction part of the alkane. Huh? Hydrocarbons occur widely in nature. Huh? First of all we need to understand what are hydrocarbons. Hydrocarbons are nothing but these are the composition of hydrogen and carbon. Huh? That is what carbon and hydrogens are present in their structure. Hmm? The simplest organic compounds includes carbon and hydrogen. Huh? I have written here. Huh? The carbon first to carbon 4. Huh? Contains by the LPG gas, that is liquefied petroleum gas, liquefied natural gas, compressed natural gas. And from carbon 6 to carbon 8, it contains gasoline and petrol. Gasoline and petrol contains by carbon 6 to carbon 8, and the diesel from the carbon 15 to carbon 18. एंड द वैक्सेस कार्बन नंबर 29 टू 31 तक आता है. तो दिस इज द वेरी चीपर थिंग ऑफ आवर इंट्रोडक्शन पार्ट. आफ्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस. कार्बन 11 इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाई? बिकॉज इन दिस कॉकरोचेस एक्सक्रीट द कार्बन 11. जो कॉकरोच होते हैं वो कार्बन 11 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो क्या करता है विच हेल्प टू अट्रैक्ट ऑपोजिट जेंडर. ऑपोजिट जेंडर को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है. हाँ? उसके बाद से जो कॉमन कंपोनेंट है हमारा मैंगो का, वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? दिस cyclo means cycle like structure, and these valencies are not satisfied. Understood? These valencies are not satisfied, and double bonds are not present in case of cyclohexane. Double bonds are present in benzene ring, hence it is known as cyclohexane. Why it is called as cyclohexane? Double bonds are not present and 6 carbon bonds are there. First carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon and sixth carbon. The 6 carbon means what? Hexane, and this is cycle like structure, hence it is known as cyclohexane. Understood? Alkanes like ethylene, propylene and styrene. Ethylene, that is polyethylene. Propylene, that is polypropylene, and styrene, that is polystyrene. All these are the polymers. All these are the what? Polymers. Hence these are used in the manufacture of polymers. Understood? Domestic fuels. Domestic fuels are used as what? LPG gas, LPG and kerosene. These are the what? Domestic fuels. Why these are? इसको हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल क्यों कह रहे हैं? जो हम अपने घर पे यूज जिसको कर सकते हैं, दैट इज एलपीजी को यूज करते हैं और केरोसिन को. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट सीएनजी है, पेट्रोल है और डीजल को हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं. दीज आर द कॉमन पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन पार्ट, अल्केन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? And after that we are going to next part of the hydrocarbons, that is the classification of hydrocarbons. So hydrocarbons are classified in 3 types. First one is aliphatic, second one is alicyclic and third one is aromatic. First one is what? Aliphatic, alicyclic and aromatic. What are aliphatic hydrocarbons? Aliphatic hydrocarbons are nothing but open chain of carbon atoms. That is what? Like this structure.
ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन, इस कार्बन के बीच में जितने भी वैलेंसीज है वो क्या है, सेटिस्फाइड है, और ये ओपन चेन है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, ओपन चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कार्बन एटम्स आर क्लासिफाइड एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट दिस एलिफैटिक ओपन चेन कार्बन एटम्स आर सबली divided into two types. First one is saturated aliphatic hydrocarbons and second one is unsaturated aliphatic hydrocarbons. So what are saturated aliphatic hydrocarbons and what are unsaturated aliphatic hydrocarbons? So saturated aliphatic hydrocarbon includes alkanes like methane, ethane, propane, butane, etc. Unsaturated includes ethane, ethyne, etc. Or we can, in other language, we can say that it contains carbon-carbon single bond. What can we say? It contains carbon-carbon single bond. Or in case of unsaturated carbon hydrogen, it contains कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और इसमें 3 बॉन्ड। समझ में आ रहा है? ओके। आफ्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन? दीज आर नथिंग बट रिंग्स ऑफ द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का ऐसा रिंग हमको दिखेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज आर द व्हाट, एलिसाइक्लिक कार्बन एटम्स। अंडरस्टूड? उसके बाद नेक्स्ट टू इट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वी हैव टू अंडरस्टूड दिस पार्ट आल्सो। वन और मोर बेंजीन रिंग, इसका मतलब क्या है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग होगा या फिर उससे ज़्यादा बेंजीन रिंग होगा, तो उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इतना समझ में आ गया? उसके बाद से हाउ टू डिफाइन द अल्केन्स। हाउ टू डिफाइन द अल्केन्स? दीज आर नथिंग बट एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? एलिफैटिक मीन्स व्हाट? मैंने क्या बताया था यहाँ पे? एलिफैटिक मतलब क्या? ओपन चेन कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो मतलब क्या कि पहला हमारा क्या है टर्म एलिफैटिक। एलिफैटिक हमको समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद क्या होता है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अल्केन्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट हमको बताया गया है कि कार्बन एटम्स जो उसके अंदर होते हैं दे आर लिंक्ड बाय द सिंगल बॉन्ड्स, single covalent bond. There are two types of bonds. First one is ionic and second one is covalent. What are ionic bonds? Ionic bonds are those which includes ionic pairing of bonds. That is what समझ लो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। ये क्या है? इसको हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। एंड इसकी जो क्लोरीन है इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। मतलब क्या हो गया? ये दोनों के ऊपर चार्जेस आ गए और ये आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। समझ में आ गया? आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होता है, दैट इज व्हाट, समझ लो नमक है, नमक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NaCl, हाँ, सोडियम क्लोराइड। तो जो हमारा ये जो नमक है सोडियम क्लोराइड, उसमें जो क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट इज व्हाट, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, हाँ। तो बाय द रूल्स वी हैव टू ऑक्यूपाई द ऑक्टेट रूल्स। ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? इसका क्या होगा?
2 6 नो 2 8 1, और इसका क्या होगा 2 8 और 7, मतलब ये 7 इसके पास जाए या फिर एक इसके पास जाए, तो ये दोनों क्या 7 1 8 हो जाएगा, मतलब क्या होगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ इक्वल शेयरिंग हुआ। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा वहाँ पे हमारा क्या बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अंडरस्टूड। These alkanes are also known as paraffins। अल्केन का दूसरा नाम क्या है पैराफिन्स के नाम से बहुत ही मशहूर है। हाँ, किसी भी इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो अल्केन्स बहुत ही कम सुना जाता है, पैराफिन्स के नाम से इसको अधिकतर जाना जाता है। दिस अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, ये हमको मालूम होना चाहिए कि इसको पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। हाँ? तो व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन इजीली। मतलब क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन में उनके साथ केमिकल रिएक्शन होना संभव नहीं है, इसलिए अब इनको पैराफिन्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, अभी समझ लो सनलाइट आया, तो सनलाइट आया तो मतलब क्या उसकी जो एनर्जी है उसके साथ में वो मिक्सचर नहीं होगा। हाँ, तो लाइट टाइप, ये समझ में आ गया। और एग्जांपल्स आर व्हाट मीथेन, इथेन एक्सेट्रा। अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अनदर पार्ट दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो व्हाट आर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? these are what actual attachment of atoms, these are what actual attachment of atoms। मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन एटम है, फिर ये हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन और फिर से हाइड्रोजन एटम। हाँ, तो जो एक्चुअल अटैचमेंट जो हमको दिखाई देगा उसको हम लोग, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। हाँ, जिस स्ट्रक्चर में वो दिखाई देगा उसको, उस मॉलिक्यूल का हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे। हाँ, आफ्टर दैट एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम। व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम, दैट इज, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों के बीच में मैंने क्या बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। इसमें भी सेम, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। हाँ, और इसके अंदर का जो कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वी डोंट हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हाँ, वी हैव टू स्टडी इन अनदर चैप्टर। इन दैट चैप्टर वी विल डिस्कस दिस पार्ट। कार्बन हाइड्रोजन का कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड which are bonded by the axial overlap. What is axial overlap? This. कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होता है जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो इस ओवरलैपिंग में बीच में क्या होता है? कार्बन होता है और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। हाँ, कुछ इस तरह से होता है। हाँ, इस समय आपको क्या करना है? इमेजिन करना है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं? इंक्लूड होते हैं और हमको ये बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद से ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है कि कार्बन
एटम जो है लाइज एट द सेंटर। हाँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कार्बन एट द सेंटर लाई करता है और उसका स्ट्रक्चर लुकिंग लाइक पिरामिड इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दैट इज व्हाट, 4 हाइड्रोजन एटम्स at 4 corners, 4 hydrogen atoms at 4 corners of regular tetrahedron, और उनके बीच का जो एंगल होता है, एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 109 डिग्री 28 इंच। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द डैश स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट नोन एज डैश एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। दिस dot point is electrons of carbon. These are denoted as electrons of carbon and this is cross structure are the electrons of hydrogen. तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मालूम है हम लोगों को और डैश स्ट्रक्चर हम लोगों को मालूम पड़ गया। उसके बाद क्या होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस मीन्स व्हाट, we need to understand another concept that is condensed structural formula. Condensed structural formula हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बांधते। तो उसके बाद क्या होता है कि आइडेंटिकल, इसका डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच टू ए कार्बन एटम कैन बी इंडिकेटेड बाय ए सबस्क्रिप्ट। जो भी आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे बाय मीन्स ऑफ सबस्क्रिप्ट इसको क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या मतलब, कैसे भाई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स यूजिंग लाइंस। अगर मैं कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लाइंस के थ्रू बता रहा हूँ, दैट इज ऐसे कुछ, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना। अगर मैं जिगजैग मैनर में बताता हूँ तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलता हूँ। और यहाँ पे जो टर्मिनल पे जो भी ग्रुप होगा उसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। और जो मिडल में जो भी कार्बन होते हैं, क्या जो भी मिडल में जो कार्बन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिलीन ग्रुप। क्या, मिथिलीन ग्रुप। और जब कार्बन कुछ हमको इस तरह से दिखाई देता है, कार्बन हाइड्रोजन और 3 डॉट्स, 3 लाइंस आर अनसैटिस्फाइड, दैट इज व्हाट, मिथाइल। पहले मैंने क्या बोला कि टर्मिनल एंड पे जो होगा उसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। जब बीच में आएगा CH2 करके होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिलीन ग्रुप। उसके बाद जब हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं तब हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का क्लासिफाई कैसे किया गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो पहला है स्ट्रेट चेन अल्केन्स और ब्रांच चेन अल्केन। क्या है, स्ट्रेट चेन अल्केन और ब्रांच चेन अल्केन। तो स्ट्रेट चेन अल्केन क्या होता है कि ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू नॉट मोर देन 2 अदर कार्बन एटम। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। This is the structure of our hexane, n-hexane. This is the structure of our normal chain, that is what, hexane. In this hexane, our definition of straight chain alkane is what, कि each कार्बन एटम बॉन्डेड टू नॉट मोर देन, मतलब जितना भी कार्बन एटम दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इस कार्बन एटम में कोई भी एक अदर कार्बन एटम नहीं है।
इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, मतलब कहीं पे भी हमको अदर 2 कार्बन एटम्स नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए इस अल्केन को क्लासिफाइड किया गया है स्ट्रेट चेन अल्केन में। आफ्टर दैट ब्रांच चेन अल्केन, हाँ, इसमें क्या बोला गया कि 1 कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम, हाँ, तो इसमें क्या होगा कि एक ही कार्बन को 2 अलग कार्बन जुड़े हुए मिलेंगे, दैट इज एक कार्बन इधर पे, एक कार्बन इधर पे, तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन अल्केन्स, क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन अल्केन्स। नाउ here is branch chain alkanes are classified in 2 types. First one is isoalkanes, second one is neoalkane. What is the meaning of iso and what is the meaning of neo? Isoalkanes are nothing but methyl group attached to the second carbon atom of normal chain. ये हमारे नॉर्मल चेन है, जो मिथाइल ग्रुप ये दिखाई दे रहा है हमको, ये जो मिथाइल ग्रुप है अटैच टू दी फर्स्ट सेकेंड कार्बन ऑफ द नॉर्मल चेन, मतलब ये जो हमारे नॉर्मल चेन का जो सेकेंड कार्बन आइटम है उसके ऊपर क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा, तो उस कार्बन चेन को हम लोग आइसो अल्केन के अंदर कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद आता है नियो अल्केन, तो 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेकेंड। अभी इसमें क्या हो रहा था, एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा था, अभी इसमें क्या हो रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैचिंग, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है इन दिस स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, नियो अल्केन। इतना समझ में आया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स व्हाट, फर्स्ट वन इज प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम्स आर व्हाट, कार्बन विच इज अटैच्ड टू ओनली 1 अदर कार्बन एटम, मतलब ऐसा कार्बन एटम जो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही अदर कार्बन एटम से अटैच होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। एक एग्जांपल है मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, मतलब ये जो कार्बन एटम है, हा? सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्राइमरी कार्बन एटम। इस कार्बन को क्या बोला गया है, प्राइमरी कार्बन एटम। समझ में आया। सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम में क्या होगा कि जो कार्बन होगा विच इज अटैच टू व्हाट, 2 अदर कार्बन एटम, मतलब ये जो कार्बन है कुछ ऐसा होगा, मतलब 1 कार्बन इज अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स आर नोन एज सेकेंडरी कार्बन एटम। वेरी सिंपल। आफ्टर दैट tertiary carbon atom. The tertiary carbon atom means what? 1 carbon atom is attached to the 3 other carbon atom. मतलब क्या, 1 2 3, एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम से अटैच होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन एटम। और क्वाटरनरी कार्बन एटम किसको बोलेंगे, जब एक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से ऑक्यूपाइड होगा, मतलब वैलेंसेस को ऑक्यूपाइड करेगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, और इस कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलेंगे। समझ में आ रहा है। ओके। आफ्टर दैट न्यू कॉन्सेप्ट्स आर देयर, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम एंड टर्शरी हाइड्रोजन एटम। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम are nothing but hydrogen which is attached to primary carbon atom। ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच होगा, उस हाइड्रोजन एटम को प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहेंगे। ऐसा हाइड्रोजन एटम जो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम
सेकेंडरी कार्बन एटम को अटैच होगा, इसको हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। ऐसा हाइड्रोजन एटम जो टर्शरी कार्बन एटम को अटैच होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी टर्शरी हाइड्रोजन एटम। इसके बाद क्या है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म आर दी व्हाट, these are nothing but same which shows same molecular formula but different structural formula। जो क्या शो करता है, सेम molecular formula and different structural formula। means what, this is the structure of butane and butane। हाँ, this is the structure of N-butane। मतलब इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन इसके अंदर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। हाँ, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, स्ट्रेट चेन है तो इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है। तो मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। मतलब 4 कार्बन इसके अंदर भी है और 4 कार्बन इसमें भी है। तो 4 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। मतलब ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। हाँ, ओके, स्टॉप करो। यही तक रहा स्टूडेंट्स। दैट इज हम लोग ने आज क्या क्या सीखा, अल्केन्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स में के कितने टाइप्स होते हैं। हाँ, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। उसके बाद हमने क्या सीखा, डेफिनेशन ऑफ अल्केन्स, हाउ टू डिफाइन द अल्केन्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्लास, हाउ टू क्लासिफाई द अल्केन्स। हाँ, अल्केन्स का क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम का टाइप्स क्या होंगे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और एट द एंड हम लोग ने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कॉन्सेप्ट और ऑल्सो फॉर द चैप्टर, because it has what, same molecular formula and different structural formula। That's it।